जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे चेक बाउंसेस केसेस के बारे में अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हम बात करेंगे कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड के पर्सपेक्टिव से कि इन दोनों को डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द चेक बाउंस मैटर में क्या-क्या बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हम समझेंगे कि एक बार क्रिमिनल कोर्ट में चेक बाउंस का मैटर एडमिट हो जाता है तो उसके बाद कौन सी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसके अंडर कंप्लेनेंट एज वेल एज एक्यूज्ड in the check bounce matter has to go through. So let us discuss the pre-litigation stage of a check bounce matter under the NI Act. When you submit the check issued by the opposite party to the bank and the check gets dishonored, the bank will issue a check return memo to you. Once you receive the check return memo, that is where you need to be cautious because the statutory timelines to file a complaint under the NI Act starts from the date of receipt of the check return memo issued by the bank. The first step you need to do is you need to send a demand notice to the opposite party within 30 days from the date of receipt of the check return memo. In the demand notice, you have to explicitly communicate to the opposite party that the opposite party has 15 days to make payment for the dishonored check. If the opposite party fails to make the payment of the dishonored check within 15 days from the date of the receipt of the demand notice, then your timeline to file the complaint under the NI Act starts. So next step is filing of the complaint. इसमें we need to take care of three important factors. One is the limitation period. As I said, you have 30 days from the date of expiry of 15 days for the opposite party to make the payment. And if you file the complaint after the expiry of 30 days, you will be facing a tough opposition from the accused persons. सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर यू नीड टू अंडरस्टैंड इज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. आप अपना कंप्लेंट कहां पे फाइल करोगे? अंडर द एनआई एक्ट यू हैव टू जुरिस्डिक्शंस. पहला जुरिस्डिक्शन जिस बैंक ब्रांच से ये चेक डिसऑनर्ड हुआ है. सेकेंड जुरिस्डिक्शन इज वेयर द कंप्लेनेंट ब्रांच इज देयर. So based on these two jurisdiction, you have to select one jurisdiction and you have to file your complaint before the magistrate court of that particular jurisdiction. जो आपके annexures और या फिर evidence होंगे that will depends upon the various factors. First is you need to establish in your complaint that there existed a debt between you and the opposite party or the accused person, और उस debt को और उस लाइबिलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए एक्यूज पर्सन ने चेक को इशू किया था, और जब आपने बैंक में सबमिट किया तो वो चेक डिसऑनर हो गया बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड्स एंड द एक्यूज हैज डेलिबरेटली इशूड नोइंगली वेल इन द एडवांस दैट इस अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तब भी उसने ये चेक इशू किया. एंड दैट इज व्हाई यू आर बिफोर द ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट अंडर द एनआई एक्ट. तो प्री समनिंग एविडेंस में आप अपना डेट के रिलेटेड इफ यू वांट टू ब्रिंग सम डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड, चेक जो बाउंस हुआ है, जो रिसीट ऑफ चेक रिटर्न मेमो है वो आप सेंड करोगे. डिमांड नोटिस जो आपने ऑपोजिट पार्टी या एक्यूज पर्सन को इशू किया था वो आप सबमिट करोगे. दीज आर द पर्टिकुलर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच यू विल एनेक्स along with your complaint and file it before the magistrate of the particular jurisdiction. So after filing of your complaint, the magistrate will go through your complaint and the pre-summoning evidence is filed by you. If the magistrate is prima facie satisfied that all the ingredients of the section 138 of the NI Act are there in your complaint, then the magistrate will take cognizance of the complaint and issue a summons to the accused persons involved in this complaint. So, after issuance of the summons, the accused persons have to be personally present in the court
And normally in the first hearing of the NI matter, check bounce matter, the accused persons will be seeking a bail from the magistrate court and will file the bail bond before the magistrate court. So, after completion of the bail formalities, the magistrate court will issue a notice under 251 CRPC to the accused persons. And accused person, in response to that notice, will submit their plea of defense before the magistrate court. Generally, plea of defense में क्या आएगा? Accused person will say कि उसने चेक साइन नहीं किया, चेक की अमाउंट जो थी उसने फिल नहीं करी, और ये जो चेक बाउंस का मैटर है, इट इज नथिंग जस्ट ए मिसयूज डन बाय द कंप्लेनेंट साइड, क्योंकि ये चेक जो था कभी डेट एग्जिस्ट ही नहीं करा एक्यूज्ड पर्सन और कंप्लेनेंट के बीच में, या फिर ये जो चेक था डेट को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं था बट एज ए सिक्योरिटी चेक दिया गया था कंप्लेनेंट को. सो दीज आर द प्ली ऑफ डिफेंस will be recorded by the honorable magistrate court. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान में रखनी है फ्रॉम द एक्यूज पर्सन पर्सपेक्टिव इज रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग ए क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट एंड इट्स विटनेसेस. अगर ये हम रिक्वेस्ट नहीं डालते तो जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है इस ट्रायल को समरी ट्रायल की तरह चलाएगा. अगर ये रिक्वेस्ट हम डालते हैं और एक्सेप्ट हो जाती है तो ये जो चेक बाउंस का मैटर है वो समन ट्रायल्स की तरह चलेगा. So once your request for cross examination of the complainant as well as the witnesses of the complainant is accepted, तब जो मैटर है एविडेंस की स्टेज में चला जाएगा. सबसे पहले कंप्लेनेंट का खुद का एविडेंस इन चीफ होगा और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा. फिर कंप्लेनेंट की तरफ से जितने और विटनेसेस हैं उनका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा एंड उसके बाद इन विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करेगा एक्यूज्ड. आफ्टर दैट कंप्लेनेंट के एविडेंस क्लोज हो जाएगा, देन स्टार्ट होंगे एविडेंस एक्यूज पर्संस के. अच्छा, कंप्लेनेंट के एविडेंस क्लोज होने के बाद जो एक्यूज्ड की जो स्टेटमेंट है अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी वो रिकॉर्ड करी जाएगी. उसके बाद अब स्टेज आ जाएगी एक्यूज पर्सन या डिफेंस के एविडेंस की. अगेन जैसे कंप्लेनेंट के एविडेंस में पहले कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन चीफ हुआ और फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, सिमिलरली डिफेंस के एविडेंस में पहले हर एक विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ होगा और उसके बाद एग्जामिनेशन चीफ के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा. उसके बाद जब सभी विटनेसेस का एग्जामिनेशन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया है तो डिफेंस एविडेंस भी क्लोज हो जाएगा. डिफेंस के एविडेंस क्लोज होने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इज फाइनल आर्गुमेंट्स की. इसमें यू नॉर्मली सबमिट द रिटर्न सबमिशंस एज वेल एज द जजमेंट्स व्हिच यू विश टू रिलाई अपॉन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर फाइनल आर्गुमेंट्स. उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स होंगे कोर्ट के सामने एंड द जजमेंट विल बी डिलीवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट एज वेल एज द वेरियस एविडेंस व्हिच हैव कम अक्रॉस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स. जजमेंट में हमारे पास दो ऑप्शंस आएंगी, या तो एक्यूज पर्सन एक्विट हो जाएंगे या फिर उनको कन्विक्शन आ जाएगी. इफ दे आर कन्विक्टेड तो देन एक्यूज पर्सन आइदर फाइन इम्पोज हो सकता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर एक्यूज पर्सन फाइन भी नहीं पे करते देन उसके बदले में भी इम्प्रिजनमेंट आ सकती है. Once the judgment is delivered in a check bounce matter, what are the options available to the complainant as well as to the accused person? I will deliver these scenarios in a separate video. I hope this video has helped you to understand more about various stages involved in a check bounce matter. And in case you have any specific question regarding your check bounce matter, you can write to us at info@nyayatantra.com or you can call us at 9910092805. Stay tuned to this channel for future updates on the check bounce matter or related aspects of the law. Till then, thank you very much for going through this video. Jai Hind.